Hello students, let's begin the question and answer discussion of chapter Control and Coordination Biology class 10th. So on page number 119, some questions are given question number first from page number 119. What are the difference between a reflex action and walking? Reflex action are the involuntary actions. Involuntary actions means these actions are not in control of our will. So that occurs in response of stimuli. So they occur without involvement of conscious area of brain. So all the reflex action are unconscious action. And reflex action occurs brain and spinal cord. A reflex action occurs brain and spinal cord of the central nervous system. Actually reflex action, brain does not involve. Is it clear? So on the other hand, walking is a voluntary action which occurs under the control of our cerebellum. Cerebellum is the most largest part of the brain that control all the conscious functions of the body. So walking is learned as we grow. Walking is controlled by brain as it is used when required. Next, uh, next question. What happens at the synapse between two neurons? Actually, between two neurons, electric signals are converted into chemicals that can easily cross over the gap and pass on the chemical messenger to the next neuron, which where it is converted back into the electrical signals. Actually, in between the gap of two neurons, there is a neurotransmitter field that facilitates the transmission of nerve impulses from one neuron to the other. Next question is which part of the brain maintain the posture of the body? Cerebellum is the part of hindbrain which is responsible for the control, the motor functioning hand of the brain. So cerebellum maintain the posture and equilibrium of the body. Next, how do we detect smell of an agarbatti? So smell of an agarbatti is detected by nose. In our nose, olfactory receptor present which send the electrical signal to the olfactory lobe of the brain, olfactory lobe of the forebrain. So forebrain interpret this signal as the agarbatti to detect the smell. What the role of brain in reflex action? Reflex action are formed instantaneously in response to the stimulus that has no time for things. So for instance of sensory nerve that detect the heat are connected to the nerves that move the muscles of hand. So such connection of detecting the signal from nerves and responding to it quickly is known as reflex. Actually reflex एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. अगर हमारा हैंड किसी हॉट ऑब्जेक्ट के कंट्रोल टच में आता है तो हमारे हैंड में जो रिसेप्टर है उसको परसीव करेगा, वो परसीव करके सेंसरी नर्व से भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत जो है उसके लिए मोटर कमांड आएगा. तो इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, ये रिफ्लेक्स एक्शन आर जनरेटेड इन स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, और इंफॉर्मेशन उसका ब्रेन तक पहुंचता है बट ब्रेन जो है वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करता है, रिमेम्बर करता है फ्यूचर के लिए, लेकिन ब्रेन जो है इसमें कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है ब्रेन का. From page number 119, what are plant hormones? Plant hormones are the organic substances produces at certain site of plant and are translocated to other parts based on the requirement. So plant hormones help to coordinate growth,
development and the responses to the environment. Example, auxins, gibberellins, cytokinins, and abscisic acid and ethylene. Next question, how is the movement of leaves of the sensitive plant differ from movement uh, of the shoot towards light? तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जैसे टच मी नॉट का है, सो इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, जबकि ये टुवर्ड्स द लाइट अगर मूव कर रहा है तो इट मीन्स ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये जो सेंसिटिव प्लांट्स का जो मूवमेंट है उसको नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और जो है लाइट या किसी स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव करता है, स्पेशली लाइट के, तो ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ टच स्टिमुलस है सेंसिटिव प्लांट्स में, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में लाइट यहाँ पे स्टिमुलस है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये ड्रूपिंग मूवमेंट के थ्रू होता है, कॉज्ड बाय सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ लीफ का जो बेस में पेटियोल्स में जो पल्विनस होता है वहाँ पे वाटर भरा जाता है, तो वहाँ पे जैसे ही वाटर खत्म हो जाता है, वाटर वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, वाटर वहाँ से मूव कर जाता है, तो वो वहाँ से श्रिंक करता है और वो लीफ जो है वो फिर बेंट हो जाती है, और फिर जैसे जैसे वो वहाँ पे वाटर रीगेन करता है फिर से लीफ धीरे धीरे वो सीधी हो जाती है। ठीक है, और ये जो होता है कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ शू, एक साइड की जो लीज सेल्स होती हैं वो इलोंगेट कर जाती है, और दूसरे साइड पे जो स्टेम है वो मूव कर जाता है। जैसा कि अगर फोटोट्रॉपिक में देखेंगे, प्लांट अगर एक साइड से लाइट को परसीव करता है तो उसके सेडी साइड से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और सेडी साइड की जो लीफ सेल होगी वो बड़ी हो जाएगी, साइज में लेंथ में बड़ी हो जाएगी, और प्लांट जो लाइट की तरफ बेंट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट है ये ग्रोथ नहीं है, जबकि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ है। ठीक है, सेंसिटिव जो मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट का मूवमेंट वो बहुत फास्ट होता है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत स्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऑक्सीन, जिबरेलिन ये हार्मोन है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑक्सीन जो है सेल इलोंगेशन कॉज करता है शूट पे और ग्रोथ को रेगुलेट करता है, जिबरेलिन जो है स्टेम के इलोंगेशन और जर्मिनेशन में हेल्प करता है। हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? ऑक्सीन जो प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस होता है टिप पे, शूट के, रूट के, तो ऑक्सीन आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ टेंड्रिल, so when tendrils are attached around any support, their growth is slowed down as ऑक्सीन are sensitive to touch, तो जहाँ पे टच होता है वहाँ स्लो डाउन होता है। ठीक है, ग्रोथ कम हो जाता है। दिस मेक द मूवमेंट to the other side of the tip which gets support with there makes the other side grow faster, and side of tendril is in contact with the support and tendril bend toward the support, तो जो सपोर्ट में होता है, जो टच में होता है वो ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन जो उसका टिप है जो अदर साइड है वो ग्रो करता है बहुत फास्ट, और उसको स्पाइरल और वो बेंट हो जाता है और वो उसको स्पाइरल अरेंज कर लेता है। यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर में प्लांट सीडलिंग वेसल कंटेनिंग सॉइल एडजेसेंट, ये तीन चीजें जो है एडजेसेंट टू द सीडलिंग, पुट अ पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर, लीव द सेटअप फॉर फ्यू डेज। ऑब्जर्व करेंगे आप तो आप हाइड्रोट्रॉपिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द जियोट्रॉपिक। तो देखिए यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे सीडलिंग है, यहाँ पे वाटर को फिल कर दिया गया है, और ये देखिए रूट जो है कहाँ मूवमेंट करता है, तो हाइड्रोट्रॉपिक कर्वेचर, हाइड्रोट्रॉपिक इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द जियोट्रॉपिक। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया है। ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज से हम नेक्स्ट जो है पेज से डिस्कशन करेंगे इसमें। इस पेज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।